Hi, you guys, welcome back to my channel. This side Vani, and I'm doing the part episode 6 of the Splitsvilla couple review thing I'm doing. But today, this episode is so different. I thought I was gonna talk about Tain and Sadaf, but the finale just dropped yesterday, okay? And I have to talk about it. I'm so sorry I'm going back into that trio because literally the show has become that trio. Like, मेरे को finale लगा ही नहीं finale. Finale is just supposed to be about the winners, the task, la la la. You know what kind of performances they had. Uh, like, but it was so packed with drama. Like, it was just so much drama. Like, I did not expect it. I think पूरा ही episode was based on these three people, Ruru, Yogesh and Akanksha. I think इन लोगों के बारे में ही सबसे ज्यादा बात हुई है. So let's get into it. So when I was actually watching this finale yesterday, it was so draining. Like, itna emotionally I got drained because I was just like, what am I exactly watching? Like I'm just watching all of these people literally destroy their lives for fame, for content. Like, bro, Yogesh and Ruru. Okay, Yogesh and Ruru, the way मतलब Ruru wait कर रही थी for this finale to ruin his repo and to ruin everything. Then Yogesh also came with a lot of proofs जिसकी मैं बात करना चाहूंगी because that is not okay at all, guys. मेरे पास एक slight hint है कि वो क्या था and it's not okay. मतलब Yogesh is no, you should not have done that. And Akanksha, देखो मैंने जब आकांक्षा को देखा ना when she was crying, my heart broke. I don't know about everybody else, but my heart just broke. Even I was about to cry. It was so emotional for me. I don't know मुझे इतना क्यों emotional लगा वो चीज कि she was crying and everything. I I just got really emotionally drained and मैं उसके बाद ही सो गई थी because it just finished me out. I think ये मेरा audience perspective. What do you guys think? Like तुम्हारा क्या reaction था after the episode? Like were you guys okay after it? Did you guys have thoughts? Did you guys did you also feel that mental emotional खत्म हो जाना इतना चिक पिक सुन के like I genuinely felt that like I was emotionally gone with this episode. But I'll talk about the episode right now. So basically when Yogesh and Ruru came to the Katghara जो इन्होंने इस बार बनाया है ताकि they get all the shit and all the content out there. भाई Splitsvilla is so 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 fame hungry. I cannot even like ये कट करने की कोई जरूरत नहीं थी. बात करने की ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी. But it was good content. I'll give them that. But still, you're fame chaser. Which ठीक है यार तुम शो हो तुम्हें और क्या चाहिए लोग चाहिए. So when this happened, Ruru and Yogesh came to the stand and उन्होंने अपनी कहानी एक दूसरे ने बताई आकांक्षा ने बताई her side of the story. What I gathered is कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूरू ने एक पॉडकास्ट दिया था विद नयनदीप. सो इफ यू डोंट नो नयनदीप कौन है, नयनदीप इज अ पर्सन हु डज पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो रूरू उधर गई थी एंड शी गेव दिस पॉडकास्ट वेयर शी सेड कि मैं तो फिनाले का वेट कर रही हूँ वेयर आई गिव ऑल द प्रूफ दैट दे हैव मेट, आकांक्षा एंड रूरू हैव मेट. भाई ठीक है, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुमने बेकायदा दिखाया. आई विल इंसर्ट द पिक्चर राइट हियर दैट शी शोड on live television. Like why would you do that? You in that interview, अगर किसी ने भी वो इंटरव्यू देखा है, she literally said कि मैं आकांक्षा को तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं योगेश को बोल रही हूँ. बट इन द होल फिनाले का एपिसोड she was not that aggressive towards Yogesh. Then Akanksha पे चढ़ गई. Literally she got out of the stand. She wanted to come there and like intimidate her, or I'll use the word hit her because वो ही लग रहा था that was the intention behind it. ठीक है, not cool bro. And ये जो प्री प्लानिंग वाली थिंग आई थी, ओ माय गॉड, माय हेड जस्ट ब्लास्टेड. मतलब मैंने अभी इन लोगों के बारे में जो रिव्यू दिया था मैंने कहा था दिस इज नॉट प्री प्लान फॉर श्योर. एंड इन्होंने कितना काटा है ऑडियंस का. लाइक गाइस तुम्हारा कितना काटा है, हमारा कितना काटा है भाई. सब लोग सारे ऑडियंस का इतना गंदा कटा है बिकॉज आई जेन्युइनली थॉट कि रूरू को बाहर पता चला एंड शी हैज कम टू द शो. मुझे यही लगा. बट दे हैड प्लान्ड एवरीथिंग. जस्ट इमेजिन कि तुम एक बंदे को डेट कर रहे हो,
just to get fame. you मतलब योगेश, आई एम टॉकिंग अबाउट योगेश, ओके? योगेश बोलता है रूरू को, मैं जा रहा हूँ स्प्लिट्सविला, तू मेरे पीछे पीछे आ जाना अगर तुझे मौका मिलता है तो. Oh my god, and she came to the show, they acted so surprised. एंड उसके बाद उन्होंने ये पूरा मतलब कैन यू इमेजिन, दिस वाज ऑल प्री प्लान. मतलब भाई, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. मुझे लगता है अब स्प्लिट्सविला इज एक्चुअली स्क्रिप्टेड. आई डोंट थिंक इट्स अ रियलिटी शो गाइस. नो. इसके बाद तो यू स्प्लिट्सविला कैन नॉट इवन डिफेंड हिमसेल्फ, क्योंकि उनको तो पता होगा ना यार कि they were together or they were dating, seeing each other, relationship, whatever. They had planned this out. Like even if they were not together, they were not in a relationship. चलो एक चीज के लिए मान लेते कि वो relationship में नहीं थे. They literally were together. They had planned all this out कि हम ऐसे show में जाएंगे, ऐसा इतना बड़ा impact हो जाएगा. Bro, the amount of impact they have gotten out of the show. So many views, so many people that are talking about them, so many likes, so many followers, and it's all planned. तो बेसिकली दे मेड अ चूतिया ऑफ ऑल द ऑडियंस. खुद का तो उनका कटा ही कटा है, उन्होंने ऑडियंस का भी बहुत काटा है भाई. एंड इसके लिए तो उनको फॉर्मल अपॉलॉजी देनी चाहिए टू स्प्लिट्सविला, टू द ऑडियंस, टू एवरीबडी, बिकॉज पीपल हैड एक्चुअली पुट सो मच इमोशंस इनटू इट. मतलब तुम इमेजिन करो, तुम एक शो देख रहे हो एंड यू आर सो कनेक्टेड विद अ फ्यू पीपल, एंड तुम्हें इतना अच्छा लगता है उनके बारे में, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो पूरा प्लान था. तो योगेश एंड रूरू बोथ शुड अपोलोजाइज कि ब्रो, हमने प्लान ये क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन. यू शुड जेन्युइनली से समथिंग लाइक दिस इज नॉट ओके दैट यू प्लान्ड एवरीथिंग. लाइक आकांक्षा को तुमने बताया भी नहीं, दैट गर्ल वाज जस्ट देयर, एंड तुम लोग ये पूरा प्लान करके बैठे थे. एंड तुमने ये नहीं सोचा टू टेल हर, टू बी लाइक कि नहीं ये हमने हम लोग बाहर से बात करके आए थे. नहीं, उस बंदे को कुछ नहीं पता था यार. जस्ट इमेजिन दैट यू वुड बी इन आकांक्षा शूट, व्हाट वुड यू बी फीलिंग कि लाइक ये दोनों ने सब कुछ प्लान करा था और इन्होंने मेरा काटने की कोशिश करी, पर इनका खुद का ही कट गया एंड में. तो कर्मा ब्रो, द अमाउंट ऑफ हेट दे गॉट नाउ, इट्स जस्टिफाइड ऑनेस्टली. तुम्हारा ये क्या घटिया सा प्लान था जिसमें तुम्हें ही हेट मिल रहा है. Bro, my mind just blew after watching this finale, and they said it's pre-planned. They admitted to it. I mean, wow, like wow, it's fucking planned. नहीं, I'm not even talking about कि वो बाहर मिले हैं नहीं मिले आकांक्षा एंड योगेश. I'm talking about the show कि वो पूरा प्लान था. इतना जो इन्होंने ड्रामे करे, इतना जो इन्होंने आई लव यू बोला, was the I love you also planned? क्योंकि योगेश बोल रहा था कि मेरे को तो आई लव यू बोलना ही नहीं था, इसने मुझे धमकी दी. शी ब्लैकमेल्ड मी. वाओ. लाइक दैट्स व्हाई दिस जनरेशन सेज कि आई लव यू का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज लिटरली व्हाट इज रॉन्ग विद दीज टू पीपल. आई एम टॉकिंग अबाउट योगेश एंड रूरू राइट नाउ. इतने फेम हंग्री, इतना इतना ज्यादा गाइस, दैट यू विल फेक इट ऑल, like everything, like your whole relationship, your I love you, bhav you, tub you, whatever. You'll fake it all just for a show, just to get fame, just to get followers. It just does not. मतलब अब तो मैं इन दोनों के बिल्कुल अगेंस्ट. सो आई थिंक दे आर बोथ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, इंक्लूडिंग रूरू. ब्रो, रूरू न्यू हर बॉयफ्रेंड विल गो इनटू द शो, शी विल मेक अ कनेक्शन, मैं अंदर आऊंगी, व्हाट इट विल डू. शी न्यू हाइडिंग सा ये जो माहौल हुआ है, where she has hid that sweater thing. तो एक हुआ था कि she was at a party and she was wearing a similar sweater to योगेश, बट उसने मुझे कहा, उसने बोला कि नहीं ये तो किसी और बंदे का है यार, इतने सारे स्वेटर होते हैं, उसका थोड़ा हो सकता है. एंड देन शी इज एडमिटिंग टू दैट स्वेटर टू बी योगेश. तो मतलब you knew and you were trying to play all innocent on the show, and after the show क्या काटा है ब्रो. मतलब कितना काटा है ऑडियंस का तुमने, कितना काटा है. मतलब पीपल वर सो सैड फॉर आकांक्षा एट दैट टाइम, इतनी एम्पैथी ले रहे थे. तुम्हें इतना नहीं हुआ कि यू आर प्लेइंग विद द गर्ल्स इमोशंस, यू आर प्लेइंग विद द ऑडियंसेस इमोशंस, and end of the day you're playing with each other's emotions. Like what is wrong with you all? Because Yogesh started feeling for Akanksha when he had planned all this pehle he was still feeling for Akanksha. Just imagine the amount of drama and the like the bakwas this was. And as for Ruru, I don't appreciate you, girl. Like I don't.
आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या था, व्हाई डिड यू शो दिस पिक्चर। वो बस मिले, यू नो गाइस। मैं एक चीज बताती हूँ, जब ये बात हो रही थी ना इस फोटो की, तुम समझ नहीं सकते हो, अगर बिकॉज उस टाइम योगेश को मिल रहा था यार बहुत हेट, योगेश को इतना ज्यादा हेट मिल रहा था बिकॉज ही हैड चोजन रूरू, तो उसको मिलता ही हेट, बट दैट हेट केम इन सो मच। एंड कुछ लोग नहीं कर पाते यार, कुछ लोग वो सबल नहीं ले पाते हैं, वो इतना इतना गंद अपने दिमाग में नहीं ले पाते हैं, तो दे नीड टू वेंट इट आउट। हु कुड ही वेंट इट आउट टू? रूरू को, ताकि रूरू उस पे ही चढ़ जाए, बिकॉज व्हाट आई गैदर इज रूरू बहुत ही टॉक्सिक बंदी है गाइस, एंड योगेश भी बहुत टॉक्सिक है, दोनों ही मेंट फॉर ईच अदर है, दैट्स व्हाई दे स्टिक अराउंड फॉर सो मच, ठीक है। अब this person is so, like, he's talking about, you know, like, वो बहुत बड़ी चीज होती है यार, just understand like what kind of a brink of a mental state that guy is in. So he went to Akanksha, ठीक है, वो गया उसके पास, उसने बात करी, they spoke it out, they cleared a lot of things, उनकी बहुत बात हुई, and then they settled it out. वो एक दूसरे को कंसोल करे थे, इट्स नॉट चीटिंग, आई डोंट नो ये चीटिंग कहाँ से हुई, बिकॉज दे जस्ट स्पोक टू ईच अदर। हाँ, योगेश ने तुम्हें नहीं बताया, बट आकांक्षा तुम्हें क्यों बताएगी भाई? तुमने उसको प्री प्लानिंग का बताया कि वो तुम्हें बताएगी अबाउट इट ऑल? क्यों बताएगी वो? बहनचोद, तुमने उसका काटा व्हेन यू टोल्ड हर कि डिड यू टेल हर कि ये पूरा प्लान था, हमने तो पहले से ही प्लान कर रखा था? नहीं ना। योगेश वेंट, स्पोक टू हर, कन्फेस टू हर एवरीथिंग दैट योर शिटी प्लान वाज इन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो तुझे क्यों बताएगी कि शी हैज मेट योगेश? लाइक वो तुम्हें क्यों बताएगी भाई? तुमने उसको नहीं बताया तो व्हाई विल शी टेल यू? लाइक योगेश का बनता था टू टेल यू अबाउट दैट, यू नो, आई मेट आकांक्षा, ला ला ला, तब बनता था ब्रो, ये नहीं बनता था। आई एम सो सॉरी ब्रो, योगेश, रू कैन नॉट क्राई ओवर दिस ब्रो, दिस इज कर्मा, दिस इज फुल एंड फुल कर्मा, लाइक यू डिड समथिंग बैड टू हर, 100 टाइम वर्स इज गॉट टू यू। मतलब योगेश इज जस्ट अ टॉक्सिक गाय ब्रो, मैं तो उसकी बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बंदा दोनों को खेल गया, एंड वो ऑडियंस का तो काट ही गया, और उसको मिल भी रहा है अभी बहुत हेट, डिजर्व्ड, डिजर्व्ड। बट आई ट्रूली थिंक कि जब आकांक्षा बता रही थी ना कि लाइक ही केम टू मी क्राइंग, एंड वो रो रहा था कि उसको, you know, like all of this other things that was mentally, you know, fucking her up, and she was also getting hit some amount, but she was getting a lot of hit. तो उसको लगा होगा कि यार दिस पर्सन एक्चुअली लाइक, तो मैं उसकी एटलीस्ट बात तो सुन सकती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सिट विद हिम, तो ये कुछ गलत नहीं था। एंड सुजैन की तो मुझे बात नहीं करनी, ना मुझे अश्मिता की बात करनी है, बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स शुड नॉट बी इन दिस पिक्चर। ये तीन लोगों की बात है, ये जो दो लोग आए हैं बाहर से, इन्होंने इतना क्योस बड़ा कर दिया, आई थिंक दे शुड स्टे आउट ऑफ इट, ऑनेस्टली, क्योंकि इन दोनों का कुछ नहीं बनता था यार। व्हाई वर दे देयर इन द सिचुएशन, एंड व्हाई अस्मिता टुक दैट वीडियो ऑफ सुजैन? क्योंकि तुम्हें क्लाउड चेस करना था अस्मिता, तुम तो पूरे शो में मेरे को रेलेवेंट लगी नहीं, तो अब भी तुम ये क्यों कर रहे हो, गॉड ओनली नोज, ठीक है, बट तुमने वो किया, तुम यू टुक दैट वीडियो एंड यू शोड इट टू रूरू, एंड तुमने फिनाले तक वेट किया टू एक्सपोज देम, एंड नाउ व्हाट शुड वी टेक दिस? लाइक हम इस चीज से क्या कंक्लूड करेंगे? तुम लोग फेम के लिए आए हो ब्रो, लिटरली तुम फेम के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, देयर इज नो इमोशंस गाइस। मैं तो अब आई डोंट थिंक मैं स्पिरिचुअला देख भी सकती हूँ उसके बाद, बिकॉज इट्स लाइक क्या ही था ये शो, ठीक है, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग लाइक द शो इज वेरी स्क्रिप्टेड, लाइक मेरा तो दिमाग हिल गया यार ये चीजें सुन के। अस्मिता ने ये सब कुछ किया, सुजैन ने बोला दैट यू नो दे वर टुगेदर, दे, यस ही चीटेड ऑन रूरू ब्रो, यू आर लिटरली बेस्ट फ्रेंड्स विद हर, तुम उसके साथ हर ऐसे ऐसे थे, तुम उसके साथ हर वक्त, यू आर लिटरली दिस क्लोज टू हर आउट, एंड यू नो द अमाउंट ऑफ pain she had, the amount of whatever she had, and you still went on to saying such bad words, such irrelevant words. मतलब मुझे सुजैन का समझ नहीं आया, मुझे अस्मिता का समझ नहीं आया, वो तीन, वो दोस्त पार्टी में है भी नहीं, स्टिल दे आर टॉकिंग, क्यों? बिकॉज फेम चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लाउड चाहिए, मिल गया उनको। तुम्हारे मतलब सुजैन के फॉलोअर्स का मैं बताती हूँ, ठीक है, सुजैन फॉलोअर्स वाज 500K, अब उसके 400K तक पहुंचने वाले हैं गाइस, इतना, डू यू अंडरस्टैंड? तो जब तुम बुरे इंटेंशंस के लिए किसी का इमेज डाउन करने जाते हो, यही मिलता है तुमको भाई, बिकॉज सी, आई एम सपोर्टिंग आकांक्षा, तुम मुझे बोल सकते हो दैट आई एम सपोर्टिंग आकांक्षा बिकॉज आई एम, मुझे लगता है उसकी कोई गलती थी, शी टुक एम्पैथी फॉर योगेश, उसने उससे बात करी,
कोई बात नहीं, करी उसने, उसका कुछ नहीं था आकांक्षा का कि शील गो टू रूरू एंड शील से कि नहीं ये मुझसे मिलने आया था, वो क्यों बताएगी बेंचो, तुम लोगों ने तो पूरा प्री प्लान करा था ये सब कुछ भाई, वो क्यों बताएगी तुम्हें। योगेश का बनता था कि ही शुड हैव टोल्ड रूरू कि आई मेट आकांक्षा ऐसे ऐसे। योगेश तो है ही इमेच्योर मैन चाइल्ड ब्रो, आई थिंक ही इज द मोस्ट इमेच्योर गाय आई हैव एवर सीन, लाइक इतना बड़ा रेड फ्लैग है ना वो, लाइक दिस गाय लिटरली। अब वो वहां खड़े होके बोल रहा है दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर आकांक्षा, लाइक आर यू सीरियस, इवन दो आई लव देम टुगेदर, बट आई डोंट थिंक उनका होना चाहिए बिकॉज इट्स सो टॉक्सिक यू नो, बिकॉज योगेश डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग यू नो। इतना अगर तुम सेल्फ कॉन्शियस होगे ना दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, यू आर गोना गो क्रेजी एंड that's what's happening with you bro. You should just fix yourself first, like what kind of things you're doing to hurt another person. And जो तुमने वो पिक्चर, so I'll tell you guys, वो जो उसने पिक्चर निकाली थी ना अपने कोट से, what I think, ये this is just a prediction and this is just something that I noticed, and ये allegation है, I don't know if it's true or not. मुझे लगता है उस पिक्चर में रूरू was in a intimate situation with a girl or a boy, because देखो कुछ भी हो सकता है, ये दिस इज जस्ट माय थिंग कि मुझे ये लग रहा है, ठीक है, बट दैट इज नॉट ओके। तुम उसको दिखा रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, दैट इज अ 5 year old, मतलब जबकि भी वो पुरानी की वीडियो, व्हाई आर यू शोइंग इट ब्रो, व्हाट्स अप विद यू, लाइक वो तुम्हारी फोटो दिखा रही है तो तुम्हें भी दिखाना है कुछ ऐसा वल्गर। योगेश तो मतलब भाई ही शुड बी, मतलब उस वो अगर बिग बॉस में आया ना, ही शुड बी थ्रैश्ड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ही इज लाइक he's he's pissing off the audience, he's pissing off everybody, because literally because of him both girls are suffering, you know। एक एक चीज से गुजर रही है, एक चीज से गुजर रही है, पर मुझे ना रूरू का क्लेम नहीं समझ आया when she said कि he cheated on me with Akanksha, because I don't think so that happened. I think they just spoke and उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। तो रूरू is just exaggerating the situation to get fame. Okay, cool for you, good for you girl, you're getting that fame, आई एम हैप्पी फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा वही एजेंडा था टू कम टू द शो। आई डोंट थिंक इट वाज फीलिंग्स गाइस, आई डोंट थिंक रूरू एंड योगेश एक्चुअली लाइक्ड ऑल लव्ड ईच अदर, एंड इट्स क्वाइट क्लियर वो नहीं करते थे एक दूसरे को लाइक, बट योगेश एंड आकांक्षा डिड, बट व्हेन रूरू केम they had this plan that clearly worked for the show, not for them. It worked for the show. They got super fucking popular, and what happened at the end, Akanksha got hurt over and over and over and over and over again. इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों को तो पता था क्या होना है, दे हैड लिटरली प्लान्ड एवरीथिंग आउट। तो तुमने ये भी तो प्लान करा होगा ना, इतनी अगर तुम्हारे पास बुद्धि है कि तुम ये सोच सकते हो, तो तुमने ये भी सोचा होगा। तो आई थिंक ब्रो, अकॉर्डिंग टू मी नो, मेरे को तो आकांक्षा कहीं से भी मुझे ये गलत नहीं लगी औरत। मुझे लगता है योगेश एंड रूरू हैड लिटरली planned this whole thing so horribly, इतना horribly उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया, and it completely backfired on them, and they deserve whatever is happening to them. It's karma. I'll just say it's bloody karma. ठीक है, तुमने उसको प्री प्लानिंग में नहीं बताया, उसने भी तुम्हें नहीं बताया कि वो योगेश से मिली है, अब उन्होंने जो भी किया तुमने नहीं बताया, तुम्हें नहीं मिला। रूरू शुड बी हैप्पी शी गॉट हर कर्मा, एंड योगेश तो मतलब ही शुड नॉट डेट एनीबॉडी एट दिस पॉइंट। आई थिंक उसको 1-2 साल अब अपने ऊपर हील करना चाहिए। ही इज जस्ट सो स्क्रूड अप बिकॉज ही लिटरली जस्ट टोंगल्स इज फीलिंग लाइक दिस। उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको कभी ये पसंद आती है, कभी इसको लव यू बोलना आता है, कभी इसको क्या। ब्रो जस्ट रिलैक्स, डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल ब्रो, जस्ट स्टॉप, ठीक है। एंड आकांक्षा, I feel really bad for you bro, I really do feel bad for you. I think this show has given you so much pain, but trust me आगे जाके तो तुम्हें अभी फेम मिल रहा है उससे ट्रिपल मिलेगा, क्योंकि in this situation you were not wrong. नहीं, I think a lot of people are gonna come at you and they'll drag you down, क्योंकि अब आप बहुत फेमस हो रहे हो, तो अब तो you'll get more. So, like I think Sunny and Karan were right जब वो बोल रहे थे कि you know अभी तो you'll get 10 million, तो उस पे तो it's next level. That is true guys. जब तुम जितना फेम देते हो, तुम्हें जितना फेम मिलता है, जितनी रिकग्नाइजेशन मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उतना ही तुम्हें हेट मिलता है, तो you need to adjust it, right? But anyways guys, I just rage baited this whole bloody finale. I did not like it, I did not appreciate this show. ये जो भी फिनाले था, गुल्लू गायरा have won. Beautiful, my prediction got right. And they have won the show. Beautiful, I love them together. बहुत बढ़िया, पर उनके बारे में था ही नहीं ये फिनाले।
It was just about Yogesh, Ruru, and Akanksha. So I think it's there. These three people show this season. So let's see अगर वो Big Boss में आते हैं तो I'll do a Big Boss review too for sure. And I think अब मैं ऑडियंस को भी एक चीज बोलना चाहती हूँ, whoever is a viewer that's watching this show, अपना दिल मत लगाओ ब्रो, एंड अपनी फीलिंग्स इतना अपनी इमोशन मत लगाओ, because everything is bloody scripted. And I genuinely think it's scripted. I think they admitted it. I don't think show को पता हो, नहीं पता हो, ये तीनों के थ्रू, मतलब ये दोनों के थ्रू तो it was scripted ना. It was all scripted. That she'll come to the show, ये होगा वो होगा. Ah, bro, so fucking emotionally traumatizing and exhausting, draining. मैं उन तीनों के बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ भाई, उन तीनों के लिए तो अभी क्या ही हो रहा होगा. बट एज अ व्यूअर इट वॉज सो एग्जॉस्टिंग. एंड अभी अभी मैंने ना एक न्यूज पढ़ी कि ये जो इनकी फाइट चल रही है तीनों की, इट वॉज फॉर 6 hours. जस्ट इमेजिन 6 hours you are just slamming each other with allegations that are not proven true. Like, do you have a video of them cheating together on Ruru? No, right? फालतू में this whole bhada came. And they met because Yogesh was low. Akanksha did not want to meet him. She was like, मेरे को नहीं मिलना है इस आदमी से भाई, मेरे को नहीं मिलना. But for Saurabh, she did, because she knew कि उसको क्या हो रहा होगा, इतना hate मिल रहा है यार, सबको पता चलता है. Oh my god, this grew out of proportion, guys. ये show ही एक नंबर का है, ठीक है. But anyways, that concludes my video, guys. I hope you guys enjoyed it, loved it. What do you think about this trio? Do you think Akanksha was right, Ruru was right, Yogesh was right? Please do let me know in the comments, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.